हेलो गाइस, Valerie. वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब जो जिस समय मुझे देख रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ और आपकी सेवा में लगातार लगा हुआ हूँ और आपको अपने वीडियोस के माध्यम से नए नए टॉपिक्स और नए नए कंसेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, इन वीडियो की सीरीज के अंदर अभी जो ये वीडियो आ रही है, ये वीडियो हम लोगों को नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बताएगी कि कैसे हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने नेशनल इनकम के इनकम मेथड को डिस्कस किया था कि इनकम मेथड किस तरीके से हम लोग करते हैं, इनकम मेथड से हम लोग किस तरीके से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। नाउ when we are talking about the calculation of national income through the expenditure method, we have to keep on our concentration on the expenditure being done by the several sectors in an economy. ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, हम लोग अगर एक्सपेंडिचर की भी बात करते हैं तो दैट एक्सपेंडिचर बिकम्स द इनकम ऑफ सम अदर सेक्टर। इफ अ पार्टिकुलर पर्सन और इंडिविजुअल, अ गवर्नमेंट और somebody like that is making an expenditure, then that will become the income of the other sector। वो दूसरे सेक्टर के लिए बेटा क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। तो if we are tracking out the income, then also we are able to calculate the national income, and if we are tracking out all the expenditures also, then in that case also we can have a clear notification that we are concentrating over the income of the economy। because एक्सपेंडिचर अगर हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी तो किसी ना किसी के पॉकेट का इनकम बन रहा है। अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो एक व्यक्ति के पॉकेट से पैसा जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति के दूसरे सेक्टर के पॉकेट में वो पैसा पहुंच रहा है। एंड दैट्स व्हाई इफ यू आर कैलकुलेटिंग एंड सेग्रीगेटिंग द इनकम इन द सेम वे, इफ यू आर कैलकुलेटिंग एंड सेग्रीगेटिंग द expenses also in the economy, then that expenditure will surely turn you around the goods and services which are being produced in the economy, and that sum up, that total aggregate will give you the component of the national income by expenditure method। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमारे पास में ये फ्लो चार्ट है। जैसे हमने इनकम मेथड में फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, वैसे ही हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन पिक करेंगे और उससे हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकंसिलिएशन, जब हम लोग रिकंसिलिएशन की बात करेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट कि व्हेन वी आर calculating it by the income method or we are calculating the national income by the expenditure method, the answer always remains the same, because in the income method we are calculating and we are accepting the incomes, and the expenditure we are calculating and we are nominating the expenditures, both income and expenditure। if an expenditure is being carried out by some person, then it will become income of the other person, and that's why how the circular flow of income happens in an economy, ये आपको पता है। That's why if we are able to club all the expenditures of all the sectors, then we are surely able to calculate the national income of the economy, and the method is expenditure method। Now under the expenditure method, this is the flow diagram। first of all you just take a snapshot of this diagram so that we can understand this flow chart। we have how many sectors available, first sector is household consumption expenditure। हाउसहोल्ड का बेटा क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो भाई हमने बोला कि जब एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर include the final consumption expenditure of all the three sectors, because there are three sectors who are the consumers of the product, three sectors who are the consumers of the product, or you can say who are spending over the products, they are households are spending over the product। ठीक है, next is your firms when they purchase the goods they also spend over the products। ठीक है, and third is the government। तो for the final consumption expenditure, when we are calculating the final consumption expenditure, first is private final consumption expenditure, private। ठीक है, which includes which sector, this includes H and F, means households and firms।
all the expenditure which will be incurred over the goods and services by the household sector and the firm sector in an economy during an accounting year will be clubbed under private final consumption expenditure. So when we are calculating the final consumption expenditure, the first component is private final consumption expenditure. Okay, private final consumption expenditure includes all the consumption expenditure over goods, which has been goods and services which has been done by the household and the firm. It includes the expenditure on the final goods consumed. Now the second component is GFCE. First component is PFCE, that is private final consumption expenditure, and the next component is GFCE, government final consumption expenditure. Government final consumption expenditure means the consumption expenditure which has been incurred by the government on the regular maintenance of rules and regulations, on the regular maintenance of administration and the other things which are the regular administrative expense of the government, and for that the government is making the expenditure that is included under government final consumption expenditure. तो ये हो गया नॉर्मल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कैटेगरी, नॉर्मल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कैटेगरी जो कि किसी का इनकम बन जाएगा, दैट विल बिकम इनकम ऑफ सम अदर सेक्टर, ये किसी दूसरे सेक्टर का क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। नाउ gross domestic capital formation, the next expenditure is gross domestic capital formation. ठीक है, gross domestic capital formation means the expenditure over investment, the expenditure over investment, and you know there are two types of investment. capital formation में दो तरह का investment होता है, one is your fixed investment, you know it very well, one is the fixed investment and the other is inventory investment. Fixed investment plus inventory investment, both the things have been included over here. So fixed investment, gross domestic fixed capital formation means the expenditure which has been incurred by the household plus business plus government in the making of fixed assets, in the purchase of fixed assets, in the purchase of capital assets, that is gross domestic fixed capital formation, and it is gross. We are not taking the net value, we are not taking the net value. If it has been written in your question net domestic fixed capital formation, then in order to make that net domestic fixed capital formation into gross, you will have to add depreciation amount into that. ठीक है, तो यहाँ gross domestic fixed capital formation के अंदर बेटा हम लोग वो सारे एक्सपेंडिचर लेंगे जो एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर हाउसहोल्ड के द्वारा, दो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा और जो एक्सपेंडिचर बिजनेस फर्म के द्वारा फिक्स्ड एसेट्स को बनाने और खड़ा करने में लगाया गया है। दैट्स व्हाई मैंने ये एरो नीचे डाल के लिख दिया है कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन विल बी कैरीड आउट बाय फर्स्ट हाउसहोल्ड, देन गवर्नमेंट एंड देन फर्म्स। ठीक है, ये तीनों जो आपके फिक्स्ड एसेट्स फॉर्मेशन करेंगे उनको हमें लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट हैज बीन क्लियरली रिटन ओवर हियर, इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय हाउसहोल्ड। ठीक है, हाउसहोल्ड कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाता है तो दैट इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसको हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे और इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर लेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हैज टू कंपोनेंट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन and inventory investment, and this inventory investment is done by the firms। ये inventory investment कौन करेगा? फर्म करेगी। तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हो सकता है आपको ये चीज दे दी गई हो, ठीक है, कि इन्वेंट्री इन्वेस्ट की ये गवर्नमेंट ने कितना फिक्स एसेट्स बनाया है, हाउसहोल्ड्स ने कितना फिक्स एसेट्स बनाया है और बिजनेस सेक्टर ने कितना फिक्स एसेट्स खड़ा किया है। इन तीनों को सम अप करेंगे तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे चले जाएंगे। पहला एक ये बात।
दूसरी बात, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे सकता है, या क्वेश्चन में आपको यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह बेटा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दे सकता है। ध्यान रहे बात। तो अगर आपको यहां पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा तो यहां भी आपको डिप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहां तीन कंडीशन हो सकता है इस जीडीसीएफ के अंदर, ध्यान से। First of all, you have been provided with the GDCF directly, then no issues, you can use this GDCF. Second treatment, when GDCF has not been provided but its substitute, but its components will be provided, that is gross domestic fixed capital formation is provided and inventory investment, that is change in stock का दूसरा नाम inventory investment भी होता है, तो इन दोनों को जोड़ करके gross domestic fixed capital formation ले आना। तीसरी बात कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो तो यहां पे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया जा सकता है, तो इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देना, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा, और फिर यहां पे ये चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ देना, तो ये वाले आंसर तक पहुंच जाओगे। चौथी बात, अगर ये पूरा का पूरा कंपोनेंट ही ना दिया हो, ना नेट के रूप में ना ग्रॉस के रूप में, और सिंपली दिया हो इन्वेस्टमेंट इन हाउसहोल्ड सेक्टर बाय द इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय हाउसहोल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा, और फिर चेंज इन स्टॉक उसमें ऐड कर देना, तो जीडीसीएफ पे पहुंच जाओगे। इसका कॉमन शॉर्ट नेम होता है जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लिखा रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और पता ही नहीं चलेगा, आप उसको बना दोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के हिसाब से। नहीं, gross domestic capital formation means we have to be provided with fixed investment का डिटेल एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का डिटेल, दोनों का एक्सपेंडिचर चाहिए। ठीक है, और कभी कभी ये भी हो सकती है, जो छठी बात है कि ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली ना दिया हो, आपको क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक की फिगर दी हो, एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन स्टॉक। तो इतनी बातें सिर्फ जीडीसीएफ के अंदर आ सकती हैं, बिकॉज एक्सपेंडिचर मेथड में आपको दिक्कत देता है तो सिर्फ जीडीसीएफ ही देता है, और कोई दिक्कत नहीं देता है। ठीक है, बाकी तो नेट एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट माइनस कर दोगे बन जाएगा। ठीक है, एनएक्स कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से हम जीडीसीएफ बोलते हैं। जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स टू थिंग्स, first is gross domestic fixed capital formation and the next is inventory investment. If gross domestic capital formation is not given, they can provide you net domestic capital formation, then you have to add depreciation. This is first thing to make it gross. Second, gross domestic capital formation will not be given. Instead of that, you have been provided with gross domestic fixed capital formation and inventory investment value. You have to add both. Third thing, in place of gross domestic fixed capital formation, they will provide you net domestic fixed capital formation. Then you have to add depreciation to make it gross domestic fixed capital formation, and again add change in stock in that, or you can say inventory investment in that. Fourth condition, they will not provide you anything about gross domestic fixed capital formation. They will provide you with the fixed assets expenditure by household, by firm and by government. Then you have to add these three things and get to the gross domestic fixed capital formation, and then again add change in stock. So these are the circumstances which you will get in your question, which you can get in your question. These are the separate circumstances that can be asked in your board examinations. आपसे ये पूछा जा सकता है. And next is the expenditure over exports, that is net exports. ठीक है, net exports. तो बोलता है नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालेंगे, तो हमने जो एक्सपोर्ट किया लेस हमने जो इंपोर्ट किया, इससे हमारा एनएक्स आ जाएगा. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एनएक्स, इसको हम लोग एनएक्स बोलते हैं. तो फाइनल फॉर्मूला अगर कोई मुझे बोले तो मैं फाइनल फॉर्मूला ये बोलूंगा कि पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस जीएफसी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस एनएक्स,
will give you what? Will give you GDP at MP. Now there is a point of concern here. It is a point of concern. Why it will give you GDP at MP? Why it will not give you NDP at FC? ठीक है, because in the income method, when we are adding operating surplus, when we are adding compensation of employee operating surplus and mixed income, you were getting the domestic income NDP at FC, and then you were just converting that NDP at FC into NNP at FC, that is the national income. Then why in this method you are not getting the aggregate, the answer, whatever the answer is, that is why it is termed as gross domestic product at market price rather than it is being termed at net domestic product at factor cost. ऐसा क्यों है? देखिए, तो बेटा वहां ना हम लोग इनकम के बारे में समझ रहे थे, इनकम के बारे में, लेकिन यहां बेटा हम लोग इनकम के बारे में नहीं समझ रहे हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर खर्च, ठीक है, और खर्च को कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, खर्च को मेजर कर रहे हैं। और आपको पता है बेटा जब भी खर्च होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो हम लोग खर्च का मतलब क्या कि हम या तो गुड्स खरीद रहे हैं या तो सर्विसेज खरीद रहे हैं, और उसको कहां से जाके खरीद रहे हैं? तो मार्केट में से जाके खरीद रहे हैं। एंड देन simply if we are purchasing something from the market and we are adding up that value of expenditures, then obviously if you are purchasing something from the market, what is that value? That is the value at market price, and whatever is the total quantity of goods and services at their final value being produced in the economy, that is the thing what you are purchasing from that economy. And what is that called? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेटा the total value of final value of goods and services which have been produced in an economy during an accounting year is termed as gross domestic product, and we are purchasing that thing from the market. That's why the price which we are quoting under the expenditure is what is the market price. And that is why when we are adding up all the expenditures, the figure which we are arriving at, जिस फिगर पे हम पहुंच रहे हैं, ठीक है, ये आपको एनडीपी एट एफसी थोड़ी ना दे देगा, बिकॉज यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने सारे गुड्स एंड सर्विसेज को की परचेज वैल्यू को लिखा है, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर को लिखा है। दैट्स व्हाई व्हाट वी आर अराइविंग एट इज जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओके। And when we are arriving at gross domestic product at market price, then we have to make the adjustments for the movement between the aggregates. ग्रॉस से नेट पे आना है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, एनएफआईए प्लस करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो एनआईटी हम लोग माइनस करेंगे। एंड देन आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला ओवर द एक्सपेंडिचर मेथड, व्हेन यू आर अप्लाइंग एक्सपेंडिचर मेथड यू विल रीच हियर, तुम जीडीपी एट एमपी तक पहुंचोगे, ठीक है। एंड व्हेन यू हैव टू गेट इट टू द नेशनल इनकम, देन यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स, एंड देन यू विल अराइव एट एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये बात समझ में आई होगी। एक हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। सर नेट एक्सपोर्ट्स को क्यों ऐड किया हमने? तो भाई एक्सपोर्ट्स का मतलब है सामान यहां से बाहर जाना, और इंपोर्ट्स का मतलब है हमने सामान को मंगाया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हुआ जितना, वो भी तो यूनिट्स गुड्स जो है हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हुई होंगी ना, ठीक है। जितना हमने एक्सपोर्ट किया वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हुई होंगी, इसीलिए हमने उनको ऐड किया। लेकिन जो हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हुआ होगा, इसीलिए हमने उसको लेस कर दिया, तो हमने जीडीपी एट एमपी की वैल्यू निकाल दी। देखो समझो, प्राइवेट कंजम्पशन फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जितना सामान कंज्यूम किया गया ये इंडिया में बना होगा, हमने कंज्यूम किया, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमने जितना कैपिटल फॉर्मेशन किया इसमें जो सामान बना होगा हमने इंडिया में उसको कंज्यूम किया, तो इसकी वैल्यू भी आ गई। प्लस एक्सपोर्ट हमने जो काम किया वो भी इंडिया में बना होगा, तो उसकी वैल्यू हमने ऐड कर दी। लेकिन इंपोर्ट जो करके हम सामान ले आए उस पे जो हमने खर्च किया वो इंडिया में नहीं बना होगा, वो बाहर से हमने खरीदा होगा, तो वो हमारे जीडीपी एट एमपी की वैल्यू में तो आएगा ही नहीं, इसीलिए हमने इंपोर्ट्स को माइनस कर दिया। और ये पूरा काम करने के बाद हमने जीडीपी एट एमपी निकाला, और जीडीपी एट एमपी निकालने के बाद इसमें हमने एट्रीब्यूट्स को माइनस किया, माइनस प्लस किया, जो भी हमने नेशनल इनकम के एट्रीब्यूट्स को चेंज करके
NNP@FC तक पहुंचना था और हम यहां पहुंच गए हैं। और इस तरीके से हमारा ये पूरा मेथड का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन टू नो यू हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। स्टे ट्यून, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन ओवर हियर। हाँ जी बेटा, देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और हमें इसमें नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है बेटा। देखिए सबसे पहले एक्सपोर्ट है, चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हम लोग देखते जाते हैं कि हम लोग क्या निकाल पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे जीडीपी एट एमपी, और निकालने के लिए जो फॉर्मूला है पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस एनएक्स, यही चार चीजें हम लोगों को खोजनी है। आइए, तो सबसे पहले मैंने बोला पीएफसी दिया हुआ है 500, तो हमने लिख दिया पीएफसी 500। आइए अब हम देखते हैं जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमें दिखाई दे गया 800, तो प्लस हमने जीएफसी लिख दिया 800 प्लस। आइए अब हम लोग देखते हैं जीडीसीएफ। तो जीडीसीएफ हम लोगों को डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो जीडीसीएफ निकालने के लिए बेटा हम लोगों को यहाँ पे वर्किंग नोट 1 करना पड़ेगा। जीडीसीएफ देखते हैं। जीडीसीएफ निकालने के लिए हमने बोला कि आपको क्या दिख रहा है, तो हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक चीज दिख रही है, दूसरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिख रहा है, और तीसरा हमें दिख रहा है ये रहा चेंज इन स्टॉक, ये रहा चेंज इन स्टॉक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जीडीसीएफ इज टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस चेंज इन स्टॉक। इतना हम लोग करेंगे और हम लोगों का जीडीसीएफ आ जाएगा। तो चलते हैं करके देखते हैं। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है अपना 700 प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा कितना है 70 प्लस क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक 110 है, ओपनिंग स्टॉक 80 है, तो 110 माइनस 80, ठीक है। तो ये फिगर कितनी आ गई 700 प्लस 70 और प्लस 80, 110 में से 80 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये कुल आंसर आपका आ जाएगा 800 करोड़। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे 800 करोड़, ठीक है। प्लस हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स के लिए ये देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू हमें पता है 100 माइनस 70, 100 माइनस 70, तो ये 30 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देख लीजिए बेटा 88 1600 16 5 2100 2130 2130 करोड़, ठीक है। कैलकुलेशन ये रुपीस करोड़ में है, तो 8816 1600 16 5 2100 2130 जीडीपी एट एमपी आ गया। अब हमें इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस से नेट लेके जाना है, तो हम लोग यहां माइनस करेंगे। क्या माइनस करना पड़ेगा, तो ग्रॉस से नेट जाना है तो डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। कितना डिप्रिसिएशन है 70, ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया। अब डोमेस्टिक को नेशनल पे लेके जाना है तो एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा। देखते हैं एनएफआईए क्या दिया हुआ है, तो एनएफआईए के लिए हमें अलग से ये कंपोनेंट दोनों दिया हुआ है। क्या क्या है, फ्रॉम -2 है, ध्यान से देखिएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 210 एंड -2 अब्रॉड 110, तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपया हम यहाँ ऐड कर देंगे एनएफआईए का। ये कैसे निकला है एनएफआईए 100 रुपया, तो 210 माइनस 110 करेंगे तो मेरे पास में
में 100 आ जाएगा। ठीक है, और अब एमपी को एफसी पे लेके जाना है तो माइनस एनआईटी करना पड़ेगा हमें। एनआईटी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 50 है। ठीक है, और यहां पे ऐसे करने के बाद मेरे पास में क्या आंसर आना है तो देखते हैं हम लोग। ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारी। ठीक है, 2130 प्लस 100 2230 हो जाएगा। ठीक है, और 2230 में से हम लोग माइनस कर देंगे 7 5 12, 120 हम लोग माइनस कर देंगे 0 1 1 2110 2110। ये हमारा क्या आ गया, ये किस चीज की वैल्यू है, ये वैल्यू है एनएनपी एट एफसी, या यू कैन से नेशनल इनकम की वैल्यू है। होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसी तरीके से आपको ये सारे कैलकुलेशंस करने हैं। यहाँ पे आपको और दूसरी फिगर्स भी आ सकती है। मान लिया नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे सकता है। वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दे सकता है कि गवर्नमेंट के फिक्स कैपिटल का इतना खर्चा है, प्राइवेट रेसिडेंशियल के फिक्स कैपिटल का इतना खर्चा है, बिजनेस फर्म्स के फिक्स इन्वेस्टमेंट का इतना खर्चा है। तो आपको उस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना है। होप सो आपको ये वीडियो कंफर्टेबल लगा होगा, समझ में आया होगा। तो बेटा आप अपने रेफरेंस बुक से और क्वेश्चंस कवर कीजिए, और फिर उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से जरूर उस डाउट के बारे में पूछिए। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपको समझ में आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। हमारे पेज द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और घर पे बैठिए, घर पे बने रहिए और अपनी पढ़ाई लगातार हमारे साथ में चालू रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।